Bismillahirrahmanirrahim. We have completed several questions of moles, right? So again, I will start from 2015 October November variant 21. Now calculate the volume of 0.200 mole per dim. Concentration is given and mass is given, right? So first, if the mass is given, first find the mole. So step one, mass of HCl. First step is find mass of HCl. Mean to say mole of HCl. Moles of HCl. So mole is equal to gram over mr. So gram you have 2.19 and mr of HCl is 36.5. 36.5. So now calculate the moles. 2.19 divided by 36.5. 0.06 mole of HCl. Now step 2. Now you have mole, you can easily find the volume. Step 2, volume. So we know that concentration is equal to mole upon volume multiplied by 1000. So concentration is given, which is 0.2. You have determined mole, you can easily find the volume. So volume is equal to 0.06 times 1000 divided by 0.2. Divided by 0.2. So first multiply by 1000, you have 6 and then divide by 0.2. So 300 dm cube is your answer. 0.6 divide, 0.06. 0.06 divided by 0.2 and then multiply by 1000. 300, the volume is 300 cm cube, not dm cube. 300 cm cube. Any question, beta? Okay. Now next question. A sample of it's from 2015 October November variant 21. Its percentage yield. A sample of 1800 gram of methanol reacts with excess carbon monoxide in water. The percentage yield of glycolic acid is 45%. Calculate the mass of glycolic acid produced. Okay, this is percentage yield. 1800 gram of methanol react with excess carbon monoxide in water. I think something is missing in the question, right? So equation is required. Let me check the equation. So this question is from 2015 October November. Mm, 2015 October November variant 21. Variant 21. Variant 21. Okay. This question is not question number 5.
Not question number 6. It's from section B. Hmm. Yes. This question. Yes. Equation is given. Equation is given. CH2O plus carbon monoxide plus water give glycolic acid, which is CH2OH and COOH and COOH. This is glycolic acid. This is question number 9. 9C. Yes. This is question number 9C. So how to calculate? First, find mole. Step 1, find mole of methanol. Step 1. बेटा मिथेनॉल के ग्राम दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट फाइंड द मोल ऑफ मिथेनॉल. So step 1, mole of methanol. Methanol is CH2O. This is methanol. Okay. So mole is equal to gram over mr. So gram is 1800 and mr is 30. When you divide 1800 by 30, you have 60 mole. So first part is find the mole of CH2O. Now you use the mole ratio to find the mole of glycolic acid. Now second step is step 2. Mole of glycolic acid. Mole of glycolic acid. So the ratio between methanol and glycolic acid is 1:1. So 60 mole means 60 mole of glycolic acid. 60 mole of glycolic acid. Now step 3. Sorry, bete. Step 3. After finding the mole of glycolic acid, you can find the mass of glycolic acid. So next step is mass of glycolic acid. बेटा कभी भी परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आ जाए और परसेंटेज यील्ड गिवन हो और मास निकालने को आ जाए तो ऐसे ही करेंगे. So gram is equal to Mr. Mole. Mr. Mole. So mr is 76 and mole is 60. When you multiply both of them, you have 4560 mole. 60 gram. Now the last step is find mass of glycolic acid produced. This is your last step, step number 4. So percentage yield is equal to practical over theoretical. PT teacher, practical yield, theoretical yield times 100. So percentage yield is 45. Percentage yield is 45. Practical yield is required. Theoretical yield is 4560 multiplied by 100. So x is equal to 4560 multiplied by 45 divided by 100. So your final answer will be 2052 gram. This is your final answer.
कैसे निकाला बेटा? सबसे मुश्किल क्वेश्चन मुझे यही लगा अभी तक का। तुम्हें क्या दिया हुआ है? मिथेनॉल, मिथेनॉल की इक्वेशन गिवन है। तुमने मिथेनॉल के ग्राम से मोल निकाले। उसके सर। बाद तुमने, हाँ बेटा वलीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी? इक्वेशन गिवन थी, मैंने नहीं कॉपी की थी, बाय मिस्टेक। अच्छा सही। ठीक है, गिवन थी एग्जाम में ना। तो फर्स्ट फाइंड द मोल ऑफ मिथेनॉल, then use the mole ratio to find the mole of glycolic acid. Then in step number 3, find the mass of the glycolic acid, and then use the percentage yield formula to find the gram. Now next question is 2015 October November variant 22. Empirical formula is required. So you have carbon, hydrogen and oxygen. Carbon you have 37.5, hydrogen you have 12.5, and oxygen is 50.0. So first find the mole. So divided by 12, divided by 1, divided by 16. So when 37.5 divided by 12, 3.125, 12.5, and 15 divided by 16, 3.125. Now which one is the smallest? Now find the mole ratio. Mole ratio. So which one is the smallest? 3.125. 3.125. Here you have 1. 12.5 divided by 3.125. You have 4, you have 1. So the final answer is CH4O. CH4O. Now next question, calculate the volume. Concentration is given, mass is given. So same question. How to find? First find the mole. Step 1. Step 1, mole of NaOH. Mole of NaOH. Gram over mR. So gram is 3.2, mR is 40. So 3.2 divided by 40 is 0.08, right? Sodium is 23, oxygen is 16, hydrogen is 1. So it becomes 40. Now step number 2. अगर तुम्हारे पास मोल आ गए तो you can easily find the volume. Now step number 2, volume of NaOH. So how to find the volume? Concentration is equal to mole upon volume multiplied by 1000. So volume is equal to N multiplied by 1000. सर, जी बेटे, आपको एमआर कैसे पता आप? मैंने अभी तो निकाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40। ओके सर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। मोल तुमने निकाले 0.08 मोल, मल्टीप्लाई बाय 1000, concentration is 0.1. So 0.08 times 1000 divided by 0.1, it's 800. देखो रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर। ठीक है मेरा बेटा। So it's 800 cm cube. So volume is 800 cm cube. Now next question. Isoprene reacts with sulfur dioxide to form methyl sulfoline. Calculate the maximum mass of methyl sulfoline
that can be formed from 100 gram of isoprene. अच्छा जी, आपको 100 ग्राम ऑफ सर आइसोप्रीन दे दिया है जी बेटा, बोलो। 1 मिनट ऊपर करेगा सर। ये सर ये एन क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन के उसमें एन का फॉर्मूला। मतलब होता है, एन का मतलब है मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके सर। ठीक है, ओ। चलो जी। अब तुम्हें देखो, ये 3 मार्क का है। अब इसका इतना आसान मेथड है, लेकिन मैं मजबूर हूं ना, 3 मार्क के लिए करना है, तो डिटेल करना पड़ेगा, राइट। नाउ स्टेप 1, फाइंड द मोल ऑफ आइसोप्रीन। मोल ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ग्राम ओवर mr. Gram is 100 and find the mr. 12 multiplied by 5 plus 8, 68. So 100 over 68. 100 divided by 68 is 1.471 mole. Now step 2. Step 2. Now find the mole of methyl sulfoline. Mole of C5H8SO2. देखो, इसके दरमियान मोल रेशियो 1:1 का है। तुम यहाँ लिखोगे C5H8, यहाँ लिखोगे C5H8SO2. Ratio is 1:1. For 1.471, it should be X. So X is equal to 1.471 mole. Now last step is mass. मेरा बच्चा, इसके अलावा कोई तरीके से नहीं करना, बेशक कुछ शॉर्ट तरीका क्यों ना हो। Now mass. Gram is equal to Mr. Mole. Gram is equal to Mr. Mole. Now find mr of methyl sulfoline. 12 multiplied by 5 plus 8 plus 32. Oxygen is 32. So 12 5 is 60. 60 plus 8 plus 64. 132. 132 times 1.471. So 132 times 1.471. Your answer is 194.1, 194.2 gram. So 194.2 gram. आंसर आपने 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। बेटा कुछ पूछना है अब तक के, कुछ क्वेश्चन में? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। सही है बेटा, शाबाश। सर हाँ मेरा बेटा। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था कौन पिछले क्वेश्चन में सर, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल इक्वल्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। 1000। तो सर अगर पीएम क्यूब में करना हो तो डिवाइड बाय 1000 लिखेंगे। नहीं ना, देखो मेरी बात सुनो। ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर तुम 1000 नहीं लिखते, लेट सपोज 1000 नहीं लिखते, ठीक है, तो तुम्हारा ये डीएम क्यूब है ना, तो डीएम क्यूब में आंसर आता डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें सीएम क्यूब में चाहिए इसलिए। और अगर सर सीएम क्यूब दिया हुआ तो डीएम क्यूब में आंसर चाहिए होता तो सर उस सूरत में डिवाइड बाय 1000। सर
सर हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. ओके, आई एम रियली सॉरी बेटा। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन पे थे, राइट? बड़ी तुम्हें बात समझ आ गई कि बेटा? जी सर, मैं वो पूछ रहा था, अगर क्वेश्चन में सीएम क्यूब दिया हुआ है और क्वेश्चन में डीएम क्यूब में हाँ देना हाँ। हो, तो उस वक्त डिवाइड बाय 1000 लिखेंगे फॉर्मूला में। नहीं नहीं नहीं, 1000 लिखेंगे नहीं। तुमने देखो इधर 1000 लिखा है ना, मैंने 1000 लिखा है ना, एन ओवर वी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो तुम 1000 नहीं लिखोगे, डीएम क्यूब में आएगा। जी सर। अगर मैंने 1000 लिखा, तुम्हें नजर आ रहा है 1000 लिखा है ना मैंने? जी सर। अगर तुम 1000 लिखोगे तो सीएम क्यूब में आंसर आएगा। अगर तुम 1000 नहीं लिखोगे तो डीएम क्यूब में आंसर आएगा। ओके सर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब जी बेटे। सर जो आपने मोल रेशो वाला स्टेप किया है, अगर वो हम स्किप कर दें, क्योंकि हाँ, स्किप वो तो करते ऑब्वियस है ना कि मोल सेम होंगे दोनों के। हाँ, लेकिन लिखना जरूरी होगा ना, 3 मार्क्स है ना। मेंशन करना होगा मोल ऑफ मिथाइल सल्फोनील इज इक्वल टू मोल ऑफ आइसोप्रीन। अच्छा, ये बात पूरा समझ आए? करना पड़ेगा जी, पूरा। हाँ, लिखना तो पड़ेगा ना, मार्क्स देखो 3 है ना, फिर 1 मार्क अच्छा हो जा रहा है हमारा ना। ठीक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम? कंसंट्रेशन इज गिवन, ग्राम इज गिवन, राइट? इट्स स्टोइचियोमेट्री। whenever gram is given, first convert into moles. ठीक है जी, स्टेप नंबर 1। now step number 1, mole of H2S, mole of H2S, so gram over mr. gram is 0.170, mr of H2S is 2 plus 32, 34, 34. So 0.170 divided by 34. So your answer is 0.005 mole. Now step number 2. So step number 2, now you can find the mole of KOH, right? So mole of KOH. So the ratio between H2S and KOH is 1:2. Mole of H2S is 0.05. You can find the mole of KOH. So answer is 0.01 mole. Now step 3. Step 3. Volume of KOH. So concentration is equal to mole upon volume multiplied by 1000. Again CM is required. That's why multiply by 1000. So V is equal to N. सर Yes, beta.
सर डीएम क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाय 24 करेंगे ना? बेटा मेरी बात सुनो, मैंने कहा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर डीएम क्यूब हो तो 1000 ही लिखो बस, बाकी पूरा प्रोसीजर वही है। ओके सर। सही है, देखो ये 1000 ही लिखता, अभी तक के ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। सो मोल इज 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000, concentration of KOH is 0.15. So 0.01 multiplied by 1000 divided by 0.15. So it's 66.7 cm cube. बेटा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इतने एग्जाम के लिए कर लोगे ना, बहुत है। नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन 2016 by June variant 21 percentage composition. Now use the data in the table to show that the urea contain a greatest percentage of by mass of nitrogen than ammonia, right? So percentage of nitrogen is required. Percentage of nitrogen in NH4 NO3. Then percentage of nitrogen in NH2 twice CO. So percentage nitrogen in NH4. So how many nitrogen? You have 2 nitrogen. And then write the molecular formula of NH4NO3. Then multiply by 100. कैसे किया? इसमें कितने नाइट्रोजन है? इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, राइट? डिवाइडेड बाय फॉर्मूला लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो नाइट्रोजन होता है 14, अमोनियम नाइट्रेट इज 80 टाइम्स 100। इसमें आ जाओ 2 टाइम 14, यूरिया दिया हुआ है 60, और यहां आ जाएगा आपके पास 100। सो 2 टाइम 14 is 28 and then divided by 80. So it's 35%. So 2 multiplied by 14 multiplied by 100 and then divided by 60. So you have 46.7%. So which one? Urea contain, right? Hence, urea contain high percentage of nitrogen. बेटे आपको बात समझ आ गई? वलीद कैसे करेंगे? जी सर। सर चलो, ये पहला क्वेश्चन आया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। अब तुम देखो, अब ये फिर सवाल आया है, कैलकुलेट द मास ऑफ मास मास रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। एक स्टेप में भी कर सकते हैं, राइट? सर वो लेकिन वाला दो। आप दोबारा बता देंगे? हाँ बेटा, ये ऊपर वाला जी। देखो बेटा, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, राइट? बताओ इसके अंदर कितने नाइट्रोजन है? टोटल 2 नाइट्रोजन ना? जी। दैट्स व्हाई आई रोट हियर 2 नाइट्रोजन। सो 2 नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। देखो इसमें भी 2 नाइट्रोजन है ना, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है। 2 नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एमआर। एमआर यहां से कॉपी किया मैंने 80, 60 यहां से कॉपी किया और सॉल्व कर लिया। चलो बोलो बेटा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी आ रही जी है। सर। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है बेटा, ये मास मास रिलेशनशिप है। आप चाहे तो मास मास रिलेशन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स है, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो फर्स्ट फाइंड द मोल। मोल ऑफ हेक्सेन
C6H12. Cyclohexane that can be made from, okay, to hexane. So hexane is C6H14. So mole is equal to gram over mr. So gram is 258. mr is 6 times 12 plus 14 plus 14, 86. So 86. So 258 divided by 86. So mole is 3. Now step 2. This 86 is mr, right? Now step 2, mole ratio. Step 2. Mole of C6H12 is equal to mole of C6H14 is equal to 3 mole. Now third step, step 3. Gram is equal to Mr. Mole. So find the mr of, so 12 times 6 plus 12, 84. So 84 times 3. So 84 times 3 is 252. 252 mole. 252 gram. 252 gram. So your answer is 252 gram. 3 mark नहीं थे, 2 mark थे. Now next question, find the percentage composition by mass. Use percentage composition by सर mass to एक show मिनट the ऊपर करेगा. अच्छा मेरा बेटा ये लो. सही हो गया. आप मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे. आप में से जो जो इस वक्त क्लास में होगा उस सबको मैं ये पूरी फाइल भेजूंगा. ग्रुप में नहीं भेजूंगा, जो मुझे मैसेज करेंगे जो क्लास में उनको मिलेगी ये फाइल, ठीक है? Another cycloalkane has the following percentage composition by mass, right? So carbon is 85.7, hydrogen is 14.3. So first divided by AR to find the mole. So 85.7 divided by 12 is 7.142, is 14.3. Now find the mole ratio. Mole ratio. So 7.14 is the smallest. So 14.3 divided by 7.142. So here you have 1, here you have 2. So formula is CH2. Now next. This is सर from एक सेकंड ATP. ऊपर करेंगे. ये लो बेटा ये लो. हो गया सर. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. Now ये भी ATP जैसा क्वेश्चन है, राइट? आपके पास दो इक्वेशन गिवन है. एक जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला है, आयरन को डाला है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. 0.65 gram sample of zinc is reacted with excess sulfuric acid. Calculate the volume of hydrogen produced at room temperature and pressure formed in this reaction. ये तो कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स है, राइट? तो फर्स्ट फाइंड द मोल ऑफ जिंक. Your first target is mole of zinc. Gram over mr.
और AR. So gram is 0.65. बोलो जिंक का AR कितना होता है बेटा? 65. 65. So 0.65 divided by 65 is 0.01 mole. Now second, volume. No, mole of hydrogen. So mole of hydrogen is equal to mole of zinc, which is equal to 0.01 mole. Now step 3. Step 3, volume. Volume is equal to mole multiplied by 24 decimeter cube. 24 dm cube, right? अभी हमने 24,000 नहीं लिखा because dm cube is required. Mole है 0.01 multiplied by 24 multiplied by 24. So answer is 0.24. 0.24. Explain why a different volume of hydrogen measured at room temperature and pressure is formed when iron is reacted. बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आयरन का AR डिफरेंट है, राइट? आयरन का AR डिफरेंट है ना बेटा? Because iron has different relative atomic mass. Very, very important question. Relative atomic mass. So it gives different mole. It gives different mole. Hence different volume of hydrogen. हाँ बेटा कुछ पूछना है, समझ आया ये बात? जी सर. सर MR और AR सेम है होते हैं. अगर 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 मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल, तो उसके लिए MR लिखते हैं ना. यहाँ देखो जिंक था ना, मुझे AR लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया था. अगर एटम होता है तो AR लिखते हैं, ठीक है? और अगर मॉलिक्यूल होता है ना बेटे, तो हम उसमें ना हम MR लिखते हैं. MR, R relative atomic mass, AR relative atomic mass, MR relative molecular mass. नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, आप 50 दफा मुझसे पूछे बेटा. देखिए आपको यहाँ, आपको ये बात समझ में नहीं आई, ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई. ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला. नीचे वाला. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये पूरा क्वेश्चन करता आयरन के लिए, तो बताइए आयरन का AR 65 होता है या 56? 56. 56. 56 होता है ना. अगर मैं 0.65 को 56 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास मोल आते हैं 0.0116. ज्यादा आ रहे हैं, है ना बेटा? ये ज्यादा आएंगे. जब ज्यादा आएंगे तो 24 से मल्टीप्लाई होकर ज्यादा वॉल्यूम आएगा. तो भाई क्यों आया? क्योंकि जिंक का AR डिफरेंट है और आयरन का AR डिफरेंट है. जब AR डिफरेंट होगा मोल डिफरेंट आएंगे. जब मोल डिफरेंट आएंगे तो हाइड्रोजन के मोल डिफरेंट आएंगे. जब हाइड्रोजन के मोल डिफरेंट आएंगे तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी डिफरेंट आएगा. बेटा बोले आपको बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है. नीचे वाला पार्ट मुझे पूछना था, एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वाला. बेटा अच्छा ये तो मुझे समझ आ गया. अच्छा सही है, सॉरी. ठीक है. अच्छा ये भी याद भी हो गया. अच्छा मुझे रुबाब आप मुझे बोलेंगे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कौन से ईयर का है बेटा? सर एक बार मैं बताती हूँ. 2022 का है. 2022 का है. आप में से जिसको जो क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? सर वो 2000. मैंने भी आपको सेंड किया था सर, अक्टूबर नवंबर 2019 का सर. आप मुझे जो बोलेंगे मैं यहाँ कराऊंगा, ठीक है? ओके. मैं यहाँ जा रहा हूँ कराने के लिए, ठीक है?
चलिए जी, पहले आप मुझे बोल देंगे आपने कौन सा बोला था बेटा, फिर मैं अरुबाब आपका कराता हूँ। सर मैंने अक्टूबर नवंबर 2019 वेरिएंट 22 का कहा था सर मैंने। मुझे लिखाइए 5070 और बोले। अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर नहीं 22 पहले वेरिएंट बोले। 2 टू 22 टू 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 आगे बोले। और 2019 मई जून। अक्टूबर नवंबर अच्छा जी, अक्टूबर नवंबर 2022 19 सर 2019। 2019 क्वेश्चन नंबर। सर एक मिनट ढूंढता हूँ, एक सर जब ढूंढ लेता हूँ सर। यहाँ मिल गया सर। क्वेश्चन 2 3। क्वेश्चन नंबर 3। जी सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आपने। क्वेश्चन नंबर 3। चलो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। सज्जा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप में से जिसको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है, बेशक वो आईजीसीएससी का क्यों ना हो, आप पूछ सकते हैं। आपने मुझे बोला है 2019 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 22, ये आ गया 2019 वेरिएंट 22 क्वेश्चन नंबर 3। वैसे मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन करा रहा था बेटा। कौन सा क्वेश्चन है ये? सी 3. हाँ बेटा, ये तो इसमें तो नहीं है। वलिद, तुमने मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ है। वलिद, आपको आवाज आ रही है बेटा? 6 वलिद डी कहाँ है है? सर। क्या कह रहे हो? 6 है, 60 क्या है? सर 6 डी कह रहा हूँ मैं 2019 का। 6 है, 6। ये वाला, ये। जी सर। ठीक है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6D है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6D। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये, 6D। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6D। सर इसी ईयर में 2C का भी है सर क्वेश्चन। आप जो बोलेंगे मैं कराऊंगा। आप इस ईयर के, अगर कोई पूरा ईयर भी करने को कहेगा मैं करा दूंगा पूरा ईयर, लेकिन मोल से रिलेटेड होना चाहिए। सही है जी, ये आ गया आपका मोल्स का क्वेश्चन, ठीक है। सर मोल के अलावा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या बेटा? मेरे पास ना मोल के अलावा एक क्वेश्चन है, मुझे ना हर ईयर में, मतलब हर ईयर में आता है ऑलमोस्ट, और मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे करना है उसे। बेटा मैं क्लास खत्म करता हूँ ना, उसके उसके बाद आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बेशक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं ना बता सकूं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना। थैंक यू। The equation for the reaction of butanoic acid with sodium carbonate is shown, right? C3H7COOH plus Na2CO3। अच्छा, आप में से जो बच्चा भी क्लास लेना चाहता है और वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको फर्दर क्लासेस में भी ऐड कर लूंगा। वर्कशॉप एंड हो जाएगी। अच्छा जी, the equation for the reaction of butanoic acid with sodium carbonate is shown. A student added 5.28 gram of butanoic acid to 56 cm cube of 0.5 mole per dm cube sodium carbonate. Show by calculating the butanoic acid is access.
बेटा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। किस चीज का क्वेश्चन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। हाँ बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ये जो एनालिसिस में होते हैं वो भी नॉन क्वेश्चंस के बाद है। हाँ बेटा, मैंने अभी आपको, अगर आपने सिर्फ सुबह की क्लास ली थी तो मैंने उसमें भी बहुत लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन कराए थे, है ना। अरे दो तो तीन और के बाद आप मुझे क्वेश्चन बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट के, मैं कराता हूँ, ठीक है। वरना मैं ऊपर देखूंगा, ऊपर मेरे पास होंगे, उसमें से करा दूंगा बेटा, कोई भी मसला नहीं है। सर मेरे पास है एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। बेटा मैं अभी ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद आपसे कराता हूँ, ठीक है। ये आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखें बेटा। सबसे पहले आपने निकालना है, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट की बात है, ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट की बात है। यहां लिखेंगे आप टेकन। आपको याद है ना, मैंने बार बार कहा था पहले आप रिएक्टेंट निकालेंगे ये, और यहां लिखेंगे ये Na2CO3। अच्छा, यहाँ ब्यूटानोइक एसिड है, इसका दिया हुआ है मोल, निकालेंगे मोल, ग्राम ओवर mr, ठीक है। इसका ग्राम है 5.28, इसका mr निकालोगे, ठीक है। 3 टाइम्स 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, ये आ जाएगा mr ब्यूटानोइक एसिड का, ठीक है। ये आ जाएगा mr ब्यूटानोइक एसिड। कितना आ रहा है बेटा? 88 88 आ रहा है। आपकी बात को मैं सही मान लेता हूँ, ठीक है, 88। सर ये 5.28 क्वेश्चन है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ये रहा 5.28, सही है। ठीक है बेटा। तो 5.28 डिवाइडेड बाय 88 आपके पास आता है 0.06 मोल, ठीक है जी। ये आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का मोल निकालना है आपने। मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 56। जब भी यूनिट सेम ना हो ना तो 1000 आता है। तो बेटा वलीद बात सर समझ आ मुझे एक रही है? चीज़ पूछनी थी कि इसमें हाँ, आप पहले सोडियम कार्बोनेट का निकाल के मोलर रेशो से भी तो निकाल सकते हैं ना, पहले वाले का मोल। देखो अभी मेरी बात सुनो, मैंने कल भी सुबह भी ये तरीका कराया था और ये ज्यादा आसान है। क्या आपको पहले दोनों के मोल निकालने, आपके 2 मार्क पक्के हो गए। लेकिन अगर आपने रेशियो लगा दिया गलत हो जाएगा, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। अभी आपने दोनों के मोल निकाल लिए, एक एक नंबर मिल गया। अब आप क्या करेंगे, मोल रेशियो लगाएंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ C3H7 COOH रेशियो Na2CO3। इसके नीचे आगे लिखा है 2, इसके आगे नीचे लिखा है 1। इसके मोल आपने कितने निकाले थे? 0.06। इसके निकालने हैं आप, ये कितना आ जाएगा? 0.03 मोल। बताएं ये टेकन से ज्यादा है या कम है? बताएं ये मास टेकन से ज्यादा है या इस टेकन से सर कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा सोडियम, इसका मतलब ये हुआ सोडियम कार्बोनेट कम है, लिया आपने, ठीक है। तो दिस मास यानी दिस मोल 0.03 is greater than taken mole of sodium carbonate. So sodium carbonate is limited. Limiting reactant. चलो बेटा और बोलो, क्वेश्चन ये हो गया। सर सर इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैलकुलेशन थी उससे इसका नंबर थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए ये लिमिटिंग है। देखो तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। देखो पहला स्टेप, पहले रिएक्टेंट के मोल निकालो। दूसरा स्टेप, दूसरे रिएक्टेंट के मोल निकालो। फिर मोल रेशियो लो। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। फिर तुम इसके मोल, ये आए थे ये लिखे, इसके मोल निकालो। अब देखो ये इसका टेकन से ज्यादा है कम? अगर ये ज्यादा है
तो ये कम, तो ये लिमिटिंग। अगर ये कम, ये ज्यादा, तो ये एक्सेस। बात समझ आ गई है? हर क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया है, हर क्वेश्चन में। और पूछो, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन किसी ने पूछना है? जी सर सर। अगला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का नहीं है, मगर इसी क्वेश्चन में सर 2C का है सर सवाल मौजूद। अच्छा, 2C वेरिएंट 22 ना? सर यही इसी पेपर में सर। देखो 2C तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आयनिक बॉन्डिंग का है। बोलो बेटा। सर मुझे भी 2019। आपसे एक पूछना था। क्या पूछो सर पूछो। मेरा भी है। बोलो, पेपर बोल सकते हो। 2024 पेपर वेरिएंट जी 2024। 2024 पेपर 2 वेरिएंट 1 में आया था। क्वेश्चन बेटा 6 का डी। विंटर और समर? अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर, यस। वेरिएंट 1 21। जी ठीक 21। है, 21। क्वेश्चन 5 का सी समझा दें और 6 का डी। ठीक है जी। 5 का सी कह रहे हैं आप? 5 का सी, जी बिल्कुल सही है। 5 का सी आ गया। और बोले कौन सा कह रहे हैं? 6 का डी। 6 का डी। सर मेरा भी आप है भेज सर। देंगे क्लास की? क्या कह रहे हैं बेटे? आप रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं क्लासेस की जो 3 हुई हैं? बेटा मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा। सर नीचे 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 ये रहा। थोड़ा और नीचे। 6 का डी। अच्छा 6 का डी, सॉरी सॉरी, ये रहा। नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी शायद कराया था, लेकिन सर थोड़ा सा मेरा भी डिफरेंट। एक है। अच्छा तुम्हारा कौन सा है? मैं अभी ये क्वेश्चन कराने के बाद करता हूँ, ठीक है बेटे? ओके सर। बेटा मुझे दोबारा बोलना, आपने क्या कौन सा ईयर बोला था इसका? सर 2024 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट पेपर 2 21। वेरिएंट 1 जी 21 हाँ, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर 2024। 2024। अच्छा जी, क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6D and 5C। 6B। D डी बेटा बिल्कुल सही है, 6D। और 5C। 5C भी है, ठीक है जी। इसको हमने ये किया, और आपने कहा है 5C। ये हमने लिख दिया 5C बेटा। सर 1 मिनट ओवर करेगा, वो स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा बेटा। मरीज ये आ गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2024। ये 2025 क्यों लिखा हुआ, लिख दिया मैंने? थ्री मार्क का क्वेश्चन है बेटा। ये आ गया बेटा क्वेश्चन, 2024 का ही है। चलो जी, पहला स्टेप है आपके पास, एक्सेस कॉपर कार्बोनेट एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है जी। कॉपर कार्बोनेट को डाला है, कॉपर कार्बोनेट, इसको डाला है HCl में। कार्बन कॉपर ऑक्साइड बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी। चलिए जी, स्टेप 1। बेटा स्टेप 1 में देखें, आपने सबसे पहले मोल निकालना है। मैंने इतनी दफा आपको बोला है, आपने मोल निकालना है, सबसे पहले मोल। देखिए ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है HCl, आप इसके मोल निकालें, ठीक है। सर इक्वेशन लिखी थी। बेटा इक्वेशन लिखी हुई थी, मैंने कॉपी पेस्ट मारी ना, ऊपर थी, ये देखें। सही है सर। मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 6 का डी। ये देखें, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 का डी, ये कौन सा था? 5C. 5C। तो ये देखें, इसमें क्वेश्चन कहाँ है? 5C। सर 5A में दी हुई है इक्वेशन। 5A में लिखी हुई है, देखिए ये लिखी हुई है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में लिखी हुई है। सही है सर। 5C का क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, मोल ऑफ HCl निकालने हैं आपने, ठीक है। मोल ऑफ HCl, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। जब भी ये दोनों यूनिट डिफरेंट होंगे 1000 लिखेंगे, तो वॉल्यूम मोल निकालना है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम CV इनटू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000। 1000, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 1000। अब क्या करेंगे हम? 0.011 क्या मोल। कह रहे हो, दोबारा बोलना। 0.011 मोल्स। 011 मोल आ गया, मोल ऑफ HCl। यस। फिर तुम फौरन निकालोगे मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है ना, तो कार्बन यस डाइऑक्साइड सर। निकालोगे, ठीक है। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिखोगे HCl, यहाँ लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड। 2:1 का रेशियो है। यहाँ लिखोगे 0.011, यहाँ लिखोगे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 0.011 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 into 10 raised to power minus 3. 5.5 into 10 is to power minus 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं आपको इस वक्त। नाउ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, so volume is equal to mole Mole multiply by by 24. 24. Why 24? Because dm cube is required. 5.5 into 10 is to power minus 3 multiply by 24. 0.132. 0.132 dm cube. into आंसर आ गया 0.132 dm cube। DMC. अच्छा, dm cube पहले से लिखा था, तो ये बेवकूफी नहीं करेंगे, तो ये डिवाइड नहीं करेंगे 24 से? मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा। एक मिनट में आपका आंसर देता हूँ। 6D। बेटा आपने 24 से मल्टीप्लाई करेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24, ऐसा ही है ना बेटा। सही है। ठीक है जी, अगला आ जाइए। 6D। सर अगर CM क्यूब में देना होता तो 24,000 से मल्टीप्लाई देना। हाँ 24,000 से करते, शाबाश। अब देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते 3 मार्क। Disulfur dichloride react with water as shown. HCl2 plus H2O2 3H2O give 2HCl plus H2S plus H2SO3. So 13.5 gram of disulfur dichloride is reacted with it. Show the what is in it. बेटा फिर ये वही लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला आ गया। लिमिटिंग reactants,
लिमिटिंग रिएक्टेंस। तो बेटा क्या करेंगे सबसे पहले, H2Cl2 के मोल निकालेंगे, ठीक है। मैं सो रहा हूँ। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, H2O के मोल निकालेंगे। तो अब हम आप देख सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, डाई सल्फर डाइक्लोराइड के ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सो मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर एमआर 13.5। इसका एमआर होगा 32 प्लस 32, 135। शाबाश 71, 135। अब इसको डिवाइड 0.1। 0.11। अच्छा जी, ये आ गया 0.0100, 100। ठीक है, 10 आ गया मोल। अच्छा जी, अब आप क्या कराएंगे, मोल ऑफ पानी निकालेंगे, मोल ऑफ वाटर। तो अब मोल ऑफ वाटर आपने बेवकूफी नहीं करनी है कि आप मोल रेशियो लगा दें, अभी पहले मोल निकालें। मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर एमआर एमआर। सो 0.44। 0.4444 मोल। अब आप क्या करेंगे, मोल रेशियो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा H2Cl2 और यहाँ लिखा H2O, रेशियो लगाया 1:3। राइट वाले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ x, तो x वुड बी 1.33। 0.3 मोल। बताएं अच्छा ये सॉरी। मास, ये मोल टेकन से ज्यादा है कम है, बताएं ज्यादा। 0.3 टेकन से ज्यादा है कम है, कम है सर। कम है। कम है, कम है, कम है। इसका कम मतलब है है, सर। इसका मतलब है ये एक्सेस है, ये लिमिटिंग है, ठीक है। सर अब तो मेरा बात, वाला भी बता दें। मैं सर अभी मेरा इसके, वाला भी बता दें। मैं सबका बताऊंगा, मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा मेरा बेटा, पहले मैं इसको लिख लूं। देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, Is there a more मोल ऑफ H2 वाटर is 0.3 mole, which is greater than? less than taken mole of H2O. So H2O is in excess and H2Cl2 is limiting. सर बोले बेटा आप अगला कौन सा करना आना है। सर स्टेटमेंट लिखना जरूरी होती है क्या? 0620 का मैंने आपको भेजा था। हाँ रुबाब आप बोले बेटा, क्या कौन सा ईयर बोले, दोबारा बोले। 0620 मई जून 0620 42 42 मई जून मई जून IGCSE का है मैंने, और बोले बेटा 22 2022। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बेटा, 4। क्वेश्चन 4, आइए देखते हैं। सर बेटा स्टेटमेंट लिखना IGCSE, जरूरी होती है? बेटा बासु का जो स्टेटमेंट मांगता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा है शो, उसमें उसने लिखा है ओके। शो। और जिस तो पे नहीं लिखा हुआ नहीं है तो उस पे ऑप्शनल होती है? ऑप्शन जगह जगह बहुत होती है, लिख दो यार, क्या जा रहा है, एक ही ओके। जुमला लिखना है, बार बार एक ही जुमला लिखना हाँ, है ना। थैंक बेटा यू सर। कौन से ईयर कह रहे थे, 2000 2022 2022 2022। हाँ बेटा 2022 का पेपर अक्टूबर नवंबर का था, नहीं, मई ये जून जो का 42। मई जून का 42, ये आ गया मई जून का 42। IGCSE में जो पेपर 2 होता है उसे पेपर 4 कहते हैं, जो पेपर 3 होता है उसको पेपर ATP का पेपर को 6 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 4, 4B 4 का डी, सेम पेपर होता है 4 का नहीं, डी, 4B 4B। ये आ गया मेरा बच्चा, 3 मार्क का क्वेश्चन है 4B। I also have a question. हाँ बेटा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क।
बेटा ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। सर ये पेपर 4 नहीं है, वेरिएंट 42। बेटा ये IGCSE का ना, उसमें पेपर 2 को पेपर 4 कहते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर, एक ही सिलेबस है इस दफा तो भाई, पिछले साल से एक ही सिलेबस है, एक ही चीजें आती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। अच्छा, फ्लोरीन react with sulfur to form a compound which has 25.2% sulfur by mass and relative molecular mass of 254. Determine the molecular formula of compound. ठीक है जी, पता है फ्लोरीन react with sulfur, राइट? एक फ्लोरीन है, एक सल्फर है, तो 25% सल्फर है, 25.2, तो फ्लोरीन कितना होगा बेटा? 74.8। 74.8। अब आप निकालेंगे मोल, मोल 74.8, इसका AR कितना होता है फ्लोरीन का बेटा? 19। 19। ठीक है 19। जी, 19 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3.94। 25.2 को डिवाइड करेंगे 32 से, आंसर इज 0.7875। विच वन इज द नाउ फाइंड, क्या बेटा? 0.7। नाउ which one is the smallest? 0.7875, 0.7875. So 3.94 divided by 0.7875, so 5.1. So empirical formula is, empirical F5. formula is SF5. Now next step is find empirical formula mass. Sulfur plus 5F. Sulfur is 32, fluorine is 19. So 127। 127. Now find N. N is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. So 254 divided by 127. कितना आ रहा है बेटा? 2. 2. So answer is SF5 S2F10. 2. So answer is S2F10. बेटे बात समझ आ गई है? जी आ यस गई। सर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे, बोले सर मेरा है बोले। सर, ये है 507021 मई जून 2022। रुबाब आपका क्वेश्चन हो गया ना बेटा? जी हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, कोई मसला नहीं। 5070 बोलो बेटा। 21 मई जून 2022। 21 मई जून मई जून 2022। 2022। 7E। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ई 7 का ई भाई, ई, ठीक है, 2022। क्या क्या 2000, केमिस्ट्री 2022। बेटा मई जून कहा था ना तुमने? यस सर। वेरिएंट 22 21। 21। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। ई 7 का ई भाई, 7 का ई।
ये आ गया 7 का ई। चलो जय बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। थ्री मार्क का ये बेटा। A sample of 2.34 gram of aluminium is reacted with 50 cm cube of okay। ये भाई लिमिटिंग का है बेटा। एल्युमिनियम के मोल निकालो, फिर H2SO4 के मोल निकालो। तो बेटा मोल इज इक्वल टू मैथ वगैरह मैथ 2.34 AR, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27। डिवाइडेड बाय 27। तो 2.34 डिवाइडेड बाय 0.086। 0.086 मोल। चलो जी अब H2SO4 करते हैं, ठीक है। H2SO4 कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा बेटा? 0.1। 0.1 मोल। देखो वही तरीकाकार अपनाएंगे, ठीक है। अब मोल रेशियो एल्युमिनियम रेशियो H2SO4 2:3। एल्युमिनियम है 0.086, यह है X, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? जीरो 0.129 मोल। बताओ इसके ग्राम ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? सर जीरो, अच्छा सही है सर, ये ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहा है, H2SO4 का मोल ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये लिमिटिंग है। So 0.129 mole of H2SO4 is greater than mole of H2SO4 taken। सर एल्यूमिनियम नहीं होगा? 0.129 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नहीं लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछा है ना, तो तुम्हारा H2SO4 आ रहा है 0.129, लेकिन तुमने कम लिया है, तो कम लिया है तो लिमिटिंग यही हुआ ना। जी जी सही है। So H2SO4 is limiting। ओके थैंक यू सर। मेरे ख्याल में आपके तमाम क्यूरीज हो गई हैं। यस सर। Sir, I have one question, please. यस बेटा। Sir, 2022 का पेपर है, पेपर 2 मई जून 2023, सॉरी। 5070 जी। वेरिएंट 22। 22 मई जून जी। मई जून 2023। 2023। क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन नंबर 9A 2023। टू 2023 मई जून वेरिएंट 22। जी। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। कौन सा बेटा 9 का? A पार्ट। ए पार्ट। अब तक के पहली दफा ही आया है एवोगाड्रो लॉ, राइट। ये आ गया एवोगाड्रो लॉ। तीन मार्क का क्वेश्चन है ये। लिख दिया हमने 3 मार्क्स। बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 480 dm³ ऑफ क्लीन ड्राई एयर एट रूम टेम्परेचर प्रेशर।
1 mole of any gas contains 6.023 into 10 to the 20 molecules. A sample of clean dry air contains 0.40 carbon dioxide by volume. अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीएम क्यूब। ठीक है जी, मॉलिक्यूल निकालने हैं। बताइए पूरी ईयर के अंदर क्या लिखा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा? 0.0400%। अच्छा ठीक है जी, आपने बता दिया कि भाई ये 0.002% जो भी आपने कहा है वो है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे आसान तरीका निकालते हैं। पहले निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। ठीक है, तो 480 डीएम क्यूब है ना क्लीन एयर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एयर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 0.04 अपॉन 100। तो 480 का ये है ना बेटा, 480 का इतना आ रहा है ना, यह आ जाएगा 0.192 डीएम क्यूब। बोलो जी यहाँ तक सर। बात समझ आ गई है? जी। अच्छा, अब स्टेप 2 है, मोल निकालो। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा मोल इज इक्वल टू 20 क्यों लिखेंगे? देखो 20 या डीएम क्यूब लिखेंगे या मोल लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे 24 डीएम क्यूब में 1 मोल होता है, तो 0.192 में x मोल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये क्या आ जाएगा, 0.008 आ रहा है मेरा। ठीक है, मोल। बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर। यस अच्छा, सर। अब तीसरा है सर ये डिवाइड बाय 100 क्यों किया था? बेटा, परसेंट लिखा है ना, 0.04% है। 100 में इतनी है तो 480 में कितना होगा? सही है। अगर अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा करा देता हूँ, वो भी कोई मसला नहीं है, उससे आसान कर ले बच्चों की तरह वाला। यहाँ लिखे एयर, यहाँ लिखे कार्बन डाइऑक्साइड। 100 में 0.04% है, तो 480 में x होगी 0.192। अब समझ आ गया बेटा? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आ जाओ मॉलिक्यूल। देखो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.08 में x होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो बेटा क्या आएगा, 4.82 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल है। बेटा मुझे आंसर बता देना, सही है ये? यस सर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सही ठीक है बेटा, है। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा दोबारा बता देंगे जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है? देखो 24 डीएम क्यूब में 1 मोल होता है। ठीक है, तो जो तुमने यहाँ निकाले हैं, ठीक है, तो उसमें कितने होंगे? 24 से ये कर लेंगे। बात समझ आ रही है? नहीं सर, फिर से समझा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने ये डीएम क्यूब निकाल लिया। ठीक है, यस सर। तो तुम्हें मालूम है ना 24 डीएम क्यूब में 1 मोल होता है। यस। तो 0.192 डीएम क्यूब में कितने मोल होंगे निकाल लो ऐसे, क्रॉस अच्छा मल्टीप्लाई अच्छा, करके। सही सही है, सही है सर, समझ। ठीक है, सही है। चलो मेरा बच्चा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, आपको अल्लाह हाफिज।